Now there are different methods of disinfectant efficacy testing, but most popular and most of the time used technique is phenol coefficient technique used to check the disinfectant efficacy. Okay, and other methods are diffusion and in use diffusions or in use dilution methods also. Okay, so ये तीन types से disinfectant efficacy testing के और methods से to check the disinfectant efficacy testing. Now first method to check the disinfectant efficacy is phenol coefficient test. Okay, phenol coefficient test क्या है? First of all you should know the phenol coefficient. Phenol coefficient that means the measure of disinfecting power of a substance determined by dividing the figure indicating the degree of dilution of a disinfectant that kills a microorganisms within a given time, by that indicating the degree of dilution of a phenol killing the microorganisms under similar condition. इसका मतलब क्या है? phenol coefficient ये जो है इट इज नथिंग बट द रेशो है, ये एक रेशो है किसका? द डाइल्यूशन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट, जो भी डिसइंफेक्टेंट का डाइल्यूशन है डिवाइडेड बाय डाइल्यूशन ऑफ द फिनॉल. ओके, ऐसा ऐसा डाइल्यूशन, द डाइल्यूशन एट विच द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेट किल्ड. ओके, सो ये जो रेशो आता है इसको बोलते हैं फिनॉल कोएफिशिएंट. So we will see in the formula, and after the procedure you may understand the exact definition of phenol coefficient. तो जनरली फिनॉल कोएफिशिएंट एक रेशियो है किसका? डाइल्यूशन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट यूज ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट व्हिच किल्स द माइक्रोऑर्गेनिज्म एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय डाइल्यूशन ऑफ द फिनॉल at a particular time period which kills the microorganism. Okay, तो ये हो गया रेशियो किसका? फिनॉल कोएफिशिएंट. Okay, the number of obtained by dividing the degree of a dilution of a test disinfectant by the degree of a dilution of phenol in a certain space of time or span of time. Okay, तो ये एक हो गया रेशियो फिनॉल कोएफिशिएंट. Now this diagram will show you how this test is carried out. Basically this phenol coefficient test is used to validate the disinfectant efficacy against Staphylococcus aureus, okay, and salmonella species. Okay, तो ये दो species के अगेंस्ट फिनॉल कोएफिशिएंट टेस्ट यूज करते हैं. इकोलाई एज अ एग्जांपल या शोन, तो हमारे पास इकोलाई का सैंपल है. ओके, इन अ लार्ज अमाउंट, उसमें से हम 0.5 ml इकोलाई सैंपल वी विल पिप इट आउट एंड वी हैव डाइल्यूशन ऑफ अ डिसइंफेक्टेंट आल्सो. मतलब डिसइंफेक्टेंट फॉर एग्जांपल फिनॉल कंसीडर कर लो. फिनॉल एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, बट ड्यू टू इट्स टॉक्सिसिटी फॉर द स्किन वी डू नॉट जनरली यूज इन द लेबोरेटरी एज अ डिसइंफेक्टेंट, बट डिसइंफेक्टेंट यहाँ पे हम फिनॉल कंसीडर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए. तो स्टॉक सोल्यूशन है हमारे पास डिसइंफेक्टेंट का, उसको हमने डाइल्यूशन किया एट 1 2 3 4 5 6 10⁻⁶ तक हमने डाइल्यूशन किया उसका. दैट मीन्स फर्स्ट ट्यूब विल बी हैविंग हायर concentration of disinfectant and the last tube which is there 10⁻⁶ is having the lowest concentration of disinfectant. Okay, तो E. coli we will pip it out 0.5 ml and we will then inoculate into this disinfectant having the dilution में हम डिसइंफेक्टेंट की डाइल्यूशन में हमने इकोलाई को इनोकुलेट किया. ओके, देन आफ्टर द 10 मिनट्स में हम चेक करेंगे कि ये जो डिसइंफेक्टेंट है इसने इकोलाई को किल किया या नहीं किया. ओके, आफ्टर द 10 मिनट्स हम फिर उसको न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में इनोकुलेट करेंगे टू चेक द फर्दर ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, हम डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ी ना चेक कर सकते कि इकोलाई किल्ड हुआ या नहीं हुआ है. अंडरस्टूड, क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट है. फिर हम जब इसको न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में इनोकुलेट करेंगे एंड आफ्टर द इंक्यूबेशन एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 48 आवर्स by observing the turbidity we can check whether the disinfectant has killed microorganism or not. Okay, so basically the tube which is having the highest concentration of disinfectant has killed more number of microorganisms than the tube which is having lowest concentration of disinfectant. Okay, ये तो basics है. जहाँ पे ज़्यादा concentration में disinfectant है वहाँ के microorganisms kill हो जाएंगे, और जहाँ पे lowest concentration था disinfectant का वहाँ पे microorganisms kill नहीं हुए. So by observing the turbidity we can measure out द डिसइंफेक्टेंट इफिकेसी. सो ये टर्बिडिटी मेथड हो गया. और इसका अगर फिनॉल कोएफिशिएंट हमें निकालना रहेगा, सो हाउ विल वी कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसका फिनॉल कोएफिशिएंट का? सो जनरली वी नो फिनॉल कोएफिशिएंट इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग डाइल्यूशन रेशियो टेस्ट ऑफ डिसइंफेक्टेंट विद द डाइल्यूशन रेशियो ऑफ फिनॉल अंडर प्री डिटरमाइंड कंडीशन. मतलब एग्जैक्ट और एट अ टाइम इंटरवल्स पे हम यहाँ रेशियो निकालते हैं, राइट. सो जो अपर केस में दैट मीन्स न्यूमरेटर में क्या होगा? डाइल्यूशन रेशियो ऑफ टेस्ट डिसइंफेक्टेंट डिवाइडेड बाय डाइल्यूशन रेशियो ऑफ फिनॉल. अभी डाइल्यूशन रेशियो क्या है? फॉर एग्जाम्पल देख लो, सपोज फिनॉल डाइल्यूटेड टू 1 पार्ट इन 100 पार्ट्स ऑफ डाइल्यूएंट, तो क्या हो गया? 1:100 हुआ. ओके, मतलब 1 पार्ट ऑफ फिनॉल, मतलब समझो फॉर एग्जांपल 1 ml फिनॉल लिया हमने 100 ml ऑफ वाटर में, तो ये हुआ 1:100. ये हुआ फिनॉल का रेशियो. इज एबल टू किल एन ऑर्गेनिज्म इन 10 मिनट्स. ये जो रेशियो है 1:100 10 मिनट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है. और अनदर डिसइंफेक्टेंट जो है इज डाइल्यूटेड 1 पार्ट इन 500 पार्ट्स डाइल्यूशन, दैट मीन्स 1:500 पे is able to kill organism at same time. तो 10 मिनट्स में 1:500 डाइल्यूशन पे डिसइंफेक्टेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करता है. तो ये क्या हो गया? फिर ये हो गया डाइल्यूशन रेशियो हो गया.
अंडरस्टूड। तो फिर अभी फिनॉल कोएफिशिएंट का डाइल्यूशन रेशियो ऑफ डिसइंफेक्टेंट दैट इज यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व किया है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। डाइल्यूशन रेशियो ऑफ डिसइंफेक्टेंट क्या हो गया फिर 1:500 एंड डिवाइडेड बाय डाइल्यूशन रेशियो ऑफ फिनॉल 1:100 हुआ। ओके, तो नाउ वी विल टेक ओनली 500 एंड 100। तो 500 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो गया 5। सो दिस इज द फिनॉल कोएफिशिएंट इज 5। तो फिनॉल कोएफिशिएंट 5 हो गया। अंडरस्टूड। दस फिनॉल कोएफिशिएंट इज 5, इट मींस दैट द टेस्ट डिसइंफेक्टेंट इज स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल इन टर्म्स ऑफ डिसइंफेक्शन। इसका मतलब क्या होगा, फिनॉल 1:100 पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा था, बट डिसइंफेक्टेंट इज किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट 1:500 डाइल्यूशन। तो फिर डिसइंफेक्टेंट ये मोर एक्यूरेट इफिकेटिव है, ओके, या इफेक्टिव है। अंडरस्टूड, फिनॉल से। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द डिसइंफेक्टेंट इफिकेसी यूजिंग फिनॉल कोएफिशिएंट मेथड। ओके, so this is the way of calculating phenol coefficient. And other methods क्या है, disk diffusion है और induced dilution है. Disk diffusion method, that means we have seen antibiotic susceptibility testing. So in place of antibiotics you can use disinfectants and aseptically using the disk, जो भी paper disk होते हैं, sterile paper disk, हम उसको disinfectant में dip कर सकते हैं and on the nutrient agar plates where you have spreaded the sample लॉन ऑफ द सैंपल, जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैंपल है उसको आपने लॉन प्रिपेयर किया ऑलरेडी, लाइक दिस, ये प्लेट है, यहाँ पे आपने लॉन प्रिपेयर किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और आपके पास डिस्क है, यहाँ पे पेपर डिस्क है, जिसको आप डिसइंफेक्टेंट में डिप कर सकते हो असेप्टिकली यूजिंग फोर्सेप्स। फिर उसको आप यहाँ पे पुट डाउन करेंगे ऐसे, and after the incubation you will see the zone of inhibition around the disc. Okay, or and after the measuring this zone of inhibition you can calculate the effectiveness of disinfectant also. Okay, जो antibiotic का मेथड था ना, सेम सिमिलरली यू कैन डू फॉर द डिसइंफेक्टेंट इफिकेसी ऑल्सो। और इन यूज डाइल्यूशन, दैट मीन्स टर्बिडिटी मेथड हो गया। दैट मीन्स डाइल्यूशन में ही, जैसे मैंने ये डायग्राम में आपको बताया है, सिमिलरली बाय यूजिंग द डाइल्यूशन मेथड and by checking the turbidity you can check the effectiveness of disinfectants, but most of the time phenol coefficient method is followed.